حاضرین گرامی اللہ، خصوصیت کے ساتھ استاذ المکرم حضرت علامہ عبدالرحیم صاحب اللہ مصباحی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین الی غیر نہایہ۔ حضرات، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور میرے پیر و مرشد حضور ربیب ملت یوں عرض کرتے ہیں، حبیب خدا غوث اعظم، حبیب خدا غوث اعظم ہے ابن علی مرتضیٰ غوث اعظم، ہے ابن علی مرتضیٰ غوث اعظم، چلے اہل دل جس کے کوچے میں سر سے، چلے اہل دل جس کے کوچے میں سر سے، وہ ہے سید اولیاء غوث اعظم، وہ ہے سید اولیاء غوث اعظم۔ اور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کرم جب گمراہ لوگوں پر پڑتی تھی، ڈاکوؤں اور رہزنوں پر پڑتی تھی، تو اس کا اثر کیا ہوتا تھا، اس کو اپنے انداز میں یوں بیان کرتے ہیں، پڑی آپ کی خاص چشمے کرم جو، پڑی آپ کی خاص چشمے کرم جو، تو گمراہ رہبر بنا غوث اعظم، تو گمراہ رہبر بنا غوث اعظم۔ اور مکتے میں کہتے ہیں کہ رقیب آپ کا آپ سے ملتجی ہے، یا سیدی غوث پاک رقیب آپ کا آپ سے ملتجی ہے، رکھیں اس کو اپنا صدا غوث اعظم، رکھیں اس کو اپنا صدا غوث اعظم۔ حاضرین گرامی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک مشہور آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آیت کریمہ کی روشنی میں سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ بیان کرنے کی غرض سے حضور مفتی صاحب قبلہ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت آفت جامع وہابیت حضرت علامہ مفتی علاء الدین صاحب اللہ مصباحی کے حکم پر آپ کے مابین حاضر آیا۔ دعا فرمائیے اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور حق سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اور اس کا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ انسانوں میں ہمیں ایمان والا بنایا، مومن بنایا۔ اس لیے اس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور پھر اہل ایمان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اس لیے
یہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے، اور اس نے اس دنیا میں اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو ایک عرصہ دراز تک بھیجتا رہا، مگر جب ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی آمد کے سلسلے کو منقطع کر دیا، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی پیغمبر کوئی نبی نیا تشریف نہیں لائے۔ اب سوال یہ ہوا کہ پیغمبران اسلام اس دنیا میں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، اب جب پیغمبران اسلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے تو اب لوگوں کی رشد و ہدایت کون کرے گا، لوگوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ حضرات اللہ رب العزت نے اس اہم ذمہ داری کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے دو گروہوں کو سپرد کر دیا۔ ان دو گروہوں میں سے ایک اولیاء کرام کی مقدس جماعت ہے اور دوسرا علماء کرام کا نورانی قافلہ ہے، اور انہیں اولیاء کرام میں سے انہیں علماء کرام میں سے ایک مشہور و معروف شخصیت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ حضرات محترم، اس لیے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت مبارکہ کی ایک جھلک آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری میں اس دنیا گیتی پر تشریف لائے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے ولی باکمال گزرے ہیں اور غوث الاعظم گزرے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ حضرات محترم صرف سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہی ولی ہو، بلکہ آپ کے خاندان کا عالم یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا کہ آپ کے خاندان کے جتنے افراد تھے سب کو اللہ رب العزت نے ولایت کا مقام اور منصب عطا فرمایا۔ جن کے خاندان کا عالم یہ ہے کہ آپ بھی ولی باکمال گزرے ہیں، آپ کے والد محترم بھی ولی باکمال تھے، آپ کے نانا جان بھی ولی باکمال تھے، آپ کی امی جان بھی ولیہ تھی، آپ کی پھوپھی بھی ولیہ تھی، گویا کہ آپ کے خاندان کا ہر فرد ولی باکمال گزرا ہے۔ حضرات محترم، اور یہ انہیں کی سیرت مبارکہ پڑھی جائے، آئیے انہیں کی سیرت مبارکہ سماعت کی جائے۔ حضرات محترم، سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات، سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے گزری ہے۔ آپ اخلاق و عادات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پیکر ہیں، آپ کا سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا مظہر کامل ہے، آپ کا اخلاق نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق تھا، آپ کی گفتار و رفتار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفتار و گفتار کے مطابق تھی۔ اسی لیے اولیاء کرام اور علماء کرام نے آپ کی شان میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ضعیفوں کو بیٹھتے، فقیروں کے ساتھ عاجزی اور تواضع کے ساتھ پیش آتے، بڑوں کی عزت فرماتے، چھوٹوں پر شفقت کرتے، محتاج اور ضرورت مند کی حاجت روائی فرماتے، یتیموں کو کھانا کھلانا، بیوہ عورتوں کی حاجت روائی کرنا، ان کی خیریت پوچھنا، کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی مجاز پرسی کے لیے جانا، یہ ساری چیزیں اور صاف جمیلہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت میں شامل تھی، آپ کے کرم میں شامل تھا۔ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، اگر کوئی ضرورت مند رہتا آپ خود بھوکے رہتے مگر اس کی حاجت روائی فرماتے، اس کی ضرورت کو پوری فرماتے۔ اگر کوئی مسکین اور محتاج آپ کو ایسا مل جاتا جو بھوکا ہو، آپ اپنی طرف سے اسے کھانا کھلاتے اور اس کی عزت افزائی فرماتے اور اس کے تمام ضروریات کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ حضرات، سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات بابرکات ہے کہ آپ نے اپنی پوری غیرت اپنی زندگی اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی روشنی میں گزاری۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت کا جو مقام اور مرتبہ حاصل ہوا، کسی بھی ولی کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہوا۔ اسی لیے اولیاء کرام تو اس دنیا میں بے شمار تشریف لاتے رہے اور قیامت تک اولیاء کرام تشریف لاتے بھی رہیں گے، مگر جماعت اولیاء میں جو مقام اور منصب سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، اور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ حاصل تھا وہ کسی بھی ولی کو حاصل نہیں ہوا۔ اسی لیے سیدی سرکار
करता है। सय्यदी सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस वाक़े की रोशनी में भी अपने अशआर को पढ़ा है। पहले आइए आप वाक़े को समाप्त फरमाएं। सय्यदी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन ही में खेल और कूद से मुजतनिब रहे। बचपन ही में खेल और कूद से परहेज किया करते थे, लाहौर से बचते थे। आपके अंदर खेलने की दिलचस्पी बिल्कुल नहीं थी। चुनांचे आप खुद फरमाते हैं, एक मरतबा मैं खेलने की गरज से बाहर निकला, बच्चों के साथ खेल रहा था तो इलैया या मुबारक की सदा आती है। मैं कोई गैर से आवाज सुनता हूँ कि कोई मुझे बुला रहा है, इलैया या मुबारक, अरे बरकत वाले बच्चे मेरी तरफ आ जा, अरे बरकत वाले बच्चे मेरी तरफ आ जा। सय्यदी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं ये मुबारक आवाज सुनता तो मैं खुद को खेल कूद से परहेज करने लगता और मैं फौरन खेल कूद को छोड़कर अपने घर को वापस चला आता। और सय्यदी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा मैं सैर व तफरीह के लिए अपने घर से बाहर निकला, एक बाग की तरफ जा रहा था, एक बाग की तरफ जा रहा था कि मुझसे एक बैल मिला जो बेजुबान जानवर है। उस बैल ने मुझसे मुखातब होकर कहा कि ऐ अब्दुल कादिर, तुम इसलिए पैदा नहीं किए गए हो और ना ही तुम्हें इस बात का हुक्म दिया गया है। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं उस बैल के कहने पर, उस बेजुबान बैल की नसीहत पर सैर व तफरीह को छोड़कर अपने घर वापस चला आया और अपने घर के टेरेस पर छत पर चढ़ गया। चुनांचे फिर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपके एक मुरीद ने पूछा, हुजूर आपको अपनी विलायत का इल्म कब हुआ? तो सय्यदी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं 10 साल का था और अपने गांव के मकदम में बच्चों के साथ पढ़ने के लिए जाया करता था तो मेरे साथ मलाइका चलते थे, मेरे पीछे पीछे फरिश्तों की जमात चलती थी। और जब मैं गांव के मकदम में पहुंचता था तो फरिश्ते मुझसे पहले अपने कदम को रखते और कहते, इस वली की अल्लाह के वली के लिए बैठने की जगह दो। फरिश्ते मेरे लिए बैठने की जगह कुशादा कराते। इस आवाज को बार-बार मैं सुनता रहा, बार-बार इस आवाज को सुनकर मैंने ये अंदाजा लगाया कि अल्लाह ने मुझे विलायत के मकाम पर फाइज किया है, मुझे मकाम विलायत अता किया है। हज़रात मोहतरम, आपसे जितना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम और मर्तबे को समझे कि आप जब खेलने के इरादे से घर से बाहर निकलते हैं तो इलैया या मुबारक की सलाह आती है। आप जब कभी सैर व तफरीह के लिए निकलते हैं तो एक बैल जो बेजानवर है, बेजुबान जानवर है, बैल आपको नसीहत करता है। आप जब मकतब में पढ़ने के लिए जाते हैं तो मलाइका किराम की जमात आपके साथ चलती है। आपसे पहले मकतब में पहुंचकर आपके बैठने के लिए जगह कुशादा कराती है। हज़रात मोहतरम, ये शान है सय्यदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बचपन के आलम का। सय्यदी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त 10 साल के बच्चे थे उस वक्त आपकी इज्जत और शान का आलम ये था। आप मुझे बताएं, जिनके बचपन का आलम ये हो उनकी पूरी हयात तैयबा का आलम क्या होगा, उनकी पूरी जिंदगी का आलम क्या होगा। और जब नबी के एक गुलाम का ये आलम है तो इमामुल अंबिया का आलम क्या होगा, इमामुल मुरसलीन का आलम क्या होगा, सय्यदुल मुरसलीन का आलम क्या होगा। इसीलिए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि मुझसे सय्यदना मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं एक मकाम पर जब इस बार का आलम ये है, उस बार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की छोड़ी, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की छोड़ी। मुहताज का जब ये आलम है, मुहताज का आलम क्या होगा, मुहताज का जब ये आलम है, तो सय्यदी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बचपन के हालात आप मुलाहजा फरमाएं। एक बार सय्यदी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र जब 4 साल की थी तो सबसे पहले जब आपको रस्म बिस्मिल्लाह खाने के लिए मकतब में ले जाया गया, गांव के मकतब में आपको लेकर आपके घर वाले गए, उस्ताद ने रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराते हुए कहा, बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने उस्ताद के कहने पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा। फिर उन्होंने कहा, बेटा तस्मिया पढ़ो, तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस्ताद के कहने पर पढ़ा और आपने ताऊज़
करते हैं। आखिरकार आपके उस्ताद मोहतरम ने आपकी बारगाह में ये सवाल पेश किया कि आपने इन पारों को कब और कैसे याद कर लिया, तो सच्ची सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों कुर्बान जाओ, फरमाते हैं कि ऐ उस्ताद मुकर्रम, मेरी वालिदा 18 पारों की हाफिजा है और जब तक वो अपने पारों की तिलावत नहीं कर देते हैं, जब तक वो 18 पारों की अपने घर में रोज डेली कुरान पाक की तिलावत नहीं कर देती है, उस वक्त तक घर का कोई काम काज नहीं करती है। इसलिए मैं बचपन ही में अपनी माँ की गोद में सुनते सुनते और शिकवे मादर में सुन सुन कर उन 18 पारों को याद कर लिया है। इसलिए मुझे 18 पारों तक कुरान पाक की हिफ्ज़ मुकम्मल है और मुझे अब इसके आगे से पढ़ना है। हज़रत मोहतरम सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन ही से विलायत के मकाम पर फाइज थे। आप मादरजात पर पैदाइशी नबी है, इसीलिए आप पैदा होते हुए भी आपने पैदा होते हुए फौरन रोजे रखा है, आपने रोजे को तर्क नहीं किया। आपके सीरत निगारों ने लिखा है कि सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रमजान मुबारक को पैदा हुए और पैदा हुए पहले रमजान शरीफ को लिखा है कि सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरे रमजान शरीफ के महीने में दिन में कभी अपनी वालिदा का दूध नोश ना फरमाते। और इसका असर क्या हुआ कि ये करामत बचपन की पूरे बगदाद में इस कदर मशहूर हुई कि लोगों ने कहा सादात के घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि जो दिन में अपने वालिदा का दूध नहीं पीता है, रमजान शरीफ के महीनों में रोजे से रहता है। चुनांचे आगे यही लिखा हुआ है कि एक साल ऐसा आया कि अब्र की वजह से दूसरे साल का चाँद ना दिखा, तो लोग सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में, आपके वालिदा माजिदा की बारगाह में कल को आए और कहा क्या उन्होंने दूध नोश फरमाया है, तो आपकी वालिदा मुहतरमा ने कहा कि आज उन्होंने दूध नोश नहीं फरमाया है। तो लोगों ने ये फैसला कर दिया अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आज दूध नहीं पिया है, इसका मतलब कल ही चाँद निकल गया और 29 ही का चाँद निकला हुआ। तो हज़रात सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम और मर्तबा को समझे और इस वाक़े से उन लोगों को दर्स इबरत हासिल करना चाहिए जो लोग बगैर पढ़े लिखे, बगैर शरीयत की पाबंदी किए हुए तरीक़त का दावा करते हैं और कहते हैं हम पीराने पीर हैं, हम तो पीर हैं, हम फला पीर के खलीफा। सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत से हमें ये पैगाम मिलता है कि सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब पैदा होते हुए भी रोज़ों का इतना ख्याल रखा हो और ऐसे आलम में जबकि बच्चों पर रोज़ा रखना फर्ज भी नहीं होता है, बंदा मुकल्लफ भी नहीं होता है, ऐसे आलम में जब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने रोज़े का इतना एहतमाम किया है, रोज़े का इतना ख्याल रखा है, शरीयत का इतनी पासदारी की है, तो आप मुझे बताइए जो लोग बालिग हो जाते हैं, जो लोग मुकल्लफ हो जाते हैं, उन्हें शरीयत का कितना ख्याल रखना चाहिए, शरीयत की कितनी पासदारी करनी चाहिए। तो गोया आप सैयदी सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस वाक़े से ये पैगाम दे दीजिए कि सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सच्चा खादिम और उनके दर का सच्चा गुलाम वही हो सकता है जो शरीयत की पाबंदी करे, जो रोज़ों की पाबंदी करे, जो नमाज़ों की पाबंदी करे। ऐसा ना हो कि रमजान शरीफ के महीने पर होटलों में पर्दे के पीछे से आदमी इफ्तार करता रहे और खाना पीना चालू किए हुए रहे। तो सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरीयत के बिल्कुल पाबंद थे और ऐसा नहीं है कि आपने इनमें दीन हासिल ना किया रहा हो। आप पैदाइशी और मादरजात वाली होने के बावजूद आपने उलमाए किराम की बारगाह में, मुहद्दिसीने किराम की बारगाह में, फुक़हाए किराम की बारगाह में आपने सफ़र तवील किया और ज़ानवे अदब तय करके आपने दर्स हासिल की और बड़े बड़े मुहद्दिसीने किराम, फुक़हाए किराम से आपने दर्स हासिल किया। उसके बाद आप जो है उलूमे ज़ाहिरिया हासिल करने के बाद उलूमे बातिनी हासिल करने के लिए इबादत और रियाज़त में मशगूल हो गए, मुजाहदे में मशगूल हो गए। चुनांचे एक मरतबा आपने साल हर साल मुजाहदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये अहद कर लिया कि मैं उस वक्त तक ना कुछ खाऊंगा और ना पीऊंगा जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे खिलाएगा पिलाएगा नहीं। चुनांचे इस अहद को किए हुए 40 रोज़ का दौर गुजर गया, 40 रोज़ आपने ना कुछ खाया
پر बैठाया और कहा अब्दुल कादिर जिलानी खाओ। सरकार गौसे पाक ने फरमाया मैंने अपने रब से के अहद किया है तो उस वक्त तक ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक कि अल्लाह मुझे ना दिलाएगा। चुनांचे शेख तरीकत बार बार इसरार करते रहे मगर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने हाथ को आगे ना बढ़ाया, अपने हाथ को उठाने के लिए बिल्कुल ना बढ़ाया। चुनांचे बहुत इसरार करने के बाद जब शेख तरीकत ये जान लेते हैं कि वाकई अब्दुल कादिर नहीं खाएगा, कौन से करते हैं ए अब्दुल कादिर तुम खाओ और पियो, मैं अपनी तरफ से तुम्हें नहीं खिला रहा हूँ बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मुझे ये हुक्म हुआ है तब मैं तुम्हें खिलाओ पिला रहा हूँ। जब आपके शेख तरीकत ने ये जुमला अदा किया अपनी जुबान से तब हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने खाया और पिया। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है मुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बस आखिरी बात मैं कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि आज लोग बाबाओं के पास बहुत दौड़ लगा रहे हैं और उनके घर पर हमेशा जाते हैं हुजूर मेरे लिए ताबीज़ बनाइए, मेरे घर में बरकत नहीं होती है, मेरी रोजियों में बरकत नहीं होती है, मेरा रिस्क बिल्कुल कुशादा नहीं है, बिल्कुल तंग है, कोई ऐसी आप ताबीज़ बना दीजिए, कोई आप ऐसा नुस्खा मुझे दे दीजिए ताकि मेरी रोजी में बरकत होने लगे, मेरे रिस्क में कुशादगी पैदा हो जाए। हज़रात ठीक इसी तरह सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में एक मुरीद जो है सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बारगाह में जाता है, अर्ज़ करता है हुजूर मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, मेरे घर वाले भी नमाज पढ़ते हैं, घर के घर पूरे घर वाले नमाजों के पाबंद हैं मगर वजह क्या है कि मेरे घर में बरकत नहीं होती है, मैं ढेर सारा कमाता भी हूँ, मेरे पास जो है तिजारत भी है, मैं अच्छी कमाई कमा लेता हूँ मगर मेरे रिस्क में बरकत नहीं होती है। लिहाजा आप मुझे कोई नुस्खा दे दीजिए, कोई ताबीज़ बना के दे दीजिए ताकि मेरे घर में ये रिस्क की आमद हो जाए और मेरे रिस्क में कुशादगी पैदा हो जाए। हज़रात मोहतरम अब आप गौर कीजिए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उन्हें कौन सी ताबीज़ बना कर दी, कौन सा नुस्खा बना कर दिया। सरकार गौसे पाक ने फरमाया जाओ अपने घर के आंगन के दरवाजे पर एक पर्दा डाल देना। वो मुरीद अजीब सा सोचता है कि मैं इनसे कुछ कह रहा हूँ और ये मुझे किसी और चीज़ का हुक्म देते हैं, पर वो था आपका मुतक़ी गया और अपने घर पर पर्दा डाल दिया और जब पर्दा डाल दिया तो उसकी रिस्क में इतनी बरकत होने लगी, इतनी बरकत होने लगी कि पूरी आबादी में वो माला माल हो गया। तो एक दिन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में तोहफा और तोहफ़ा लेकर आया और कहा हुजूर अब तो मुझे बताएं कि आखिर उस पर्दे के पीछे क्या राज पोशीदा था। जब से मैंने पर्दे को लगाया है तब से मेरे घर में रिस्क का नुज़ूल होने लगा है, मेरी रोजी में कुशादगी पैदा हो गई है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अरे वो शख्स सुनो, वजह ये है कि तेरे घर के दरवाजे से रोजाना एक बेनमाजी का गुजर होता था और मनहूस नजर तेरे घर के दरवाजे पर पड़ती थी जिसकी वजह से तेरी रिस्क में तंगी पैदा कर दी जाती थी, तेरी रिस्क में कुशादगी नहीं होती थी और तेरी रिस्क में बरकत नहीं हुआ करती थी। उसकी मनहूस नजर जो है तेरे घर में पड़ती थी, इसलिए तेरे घर से बरकत व खैर व बरकत का नुज़ूल खत्म हो जाया करता है। और जब से तुमने अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दिया है तब से उस मनहूस बेनमाजी की नजर तेरे घर के आंगन में नहीं पड़ती है, इसलिए अब तेरे घर में खूब ज्यादा बरकतों का नुज़ूल होने लगा है, रहमतों का नुज़ूल होने लगा है, तेरे रिस्क में खुशादगी पैदा हो रही है। हज़रात मोहतरम आप मुझे बताइए अगर एक बेनमाजी की नजर घर के दरवाजे पर पड़े तो उस घर में रिस्क में खुशादगी ना हो बल्कि रिस्क तंग कर दी जाए, तो जिसके घर के घर पूरे बेनमाजी हो, जिस घर में बाप भी बेनमाजी हो, जिस घर में बेटा भी बेनमाजी हो, जिस घर में बेटी भी बेनमाजी हो, जिस घर में माँ भी बेनमाजी हो, आप मुझे बताइए उस घर में कैसे खैर व बरकत का नुज़ूल हो सकता है, उस घर में कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रोज़ी में बरकत आ सकती है। इसलिए मैं आप हज़रात से मोहतरमाना गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात अपने अपने घरों पर पर्दे का इस्तेमाल करें, पर्दे में रखें, अपने घरों के दरवाजे पर पर्दे डालें, शरीयत की पासदारी करें, शरीयत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को बसर करें, सुन्नत रसूल पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इंशाअल्लाह आपकी रोज़ी रोटी में भी बरकत होगी और आपको सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैज़
मैंने थोड़ी सी बातें आप हजरात के सामने बयान फरमाई, आपने जिसको समाप्त फरमाया और समझा, आप इस बात को और भी दूसरे लोगों को पहुंचाइए। इसी तरह दीन की बात फैलती है, दीन की तबलीग होती है। अल्लाह हम सबको कुरान और हदीस पर, सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए और आपका सच्चा मुरीद और मोतमिद होने की तौफीक नसीब अता फरमाए।